Write down. Last time we have written the question to derive the kinetic energy and work energy theorem by calculus method. By calculus method. Yes, today. Yes. By calculus method, we know work done is equal to force vector into displacement vector. If force and displacement in the same direction, then it is equal to Fs cos of 0 degree, or it is equal to Fs. So therefore work is equal to what? Fs. We know force is equal to mass into acceleration into s. We know acceleration is equal to rate of change of displacement ds over dt into s into s. We know ds, okay, sorry, force into displacement ds derivative, okay, small displacement into small displacement into small displacement into small displacement. So it comes m is equal to ds over dt, because velocity is equal to what? Sorry, dv, because acceleration is equal to rate of change of velocity. So therefore it is equal to m as it is. ds को बेटे मैं dv की जगह लेके आऊंगा और dv को ds की जगह ले जाऊंगा, और and ds over dt into dv. So therefore it is equal to m into v, because rate of change of displacement is equal to what? Velocity into dv. So आगे बेटा मेरे पास therefore work done is equal to m into v into dv. This is equation number 1. If work is done, to change the velocity from 0 to v, then this is small amount of work done, dw. Why small amount of work done? Because this force displaces a body for a very small distance ds. So therefore small amount of work is done. So therefore total amount of work done can be obtained, okay, is equal to what? By integrating from 0 to v of dw. So therefore it is equal to 0 to v of dw की वैल्यू कितना बेटे? That is equal to m into v into dv, or m is constant, velocity changing, okay, so m is taken outside the integration into 0 to v of v into dv, okay, और it is equal to m. अब बेटे इंटीग्रेशन में देखो पावर वेलोसिटी की कितनी है? 1. तो जब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो वेलोसिटी की पावर जो होती है कितनी होती है? दैट इंक्रीजेस बाय 1. इट इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. जितनी पावर हो जाती है उससे डिवाइड कर देते हैं फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट v. लोअर लिमिट में उसकी इनिशियल जो स्पीड थी वो 0 थी, और अपर लिमिट उसकी कितनी है? फाइनल v, ओके. So therefore work done is equal to 1 by 2. 2 जो मैंने कॉमन ले लिया बाहर, ओके, into m as it is into put the value of, okay sorry, into ये ऐसे देता हूँ मैं यहाँ पे v square from 0 to v. Now it is equal to 1 by 2 m into put the value of upper limit in place of v. तो v की जगह v आएगा, that is equal to v square minus put the lower limit in place of v, so it is equal to 0 square
So therefore, work done is equal to 1 by 2 m into v square. This amount of work done will store in the body in the form of its kinetic energy. Yes, it is wrote down. Hurry up, hurry up, hurry up. Scott, between wrong here. Done, beta ji? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोल दिया करो. Now this is the Yes, sir. derivation for kinetic energy. Okay. Now write down. To derive work energy theorem. To derive work energy theorem. Yes, बेटे देखो इसी से कर देना. मैंने इसी करना. Yes, देखो इधर. जहां पर लिखा ना मैंने, if work is done to change the velocity from 0 to v, I am writing here from u to v. अब लोअर लिमिट क्या हो गया u एंड अपर लिमिट क्या हो गया v. सो देयरफॉर ये जो 0 0 मैं इसको हटा रहा हूं, इसकी जगह क्या लगा रहा हूं बोलो सास, u u u u. ओके. और यहाँ पे भी क्या आएगा बोलो सास, v स्क्वायर. तो ठीक है. ओके. u यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 0 स्क्वायर आएगा u स्क्वायर. एंड हेयर क्या रहेगा आपके पास बोलो सास, 1 by 2 कॉमन आ गया, m भी कॉमन है, अंदर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u square is equal to 1 by 2 m into v square minus 1 by 2 into m u square. Okay. So this is the amount of work done, and this work done what does? Therefore, work done on the body is equal to kinetic energy कौन सी final minus kinetic energy कौन सी initial. This is work energy theorem. Okay, and work energy theorem that states that work done on a body always produces a change in its kinetic energy. Always produces a change in its kinetic energy. Write down what is numerical. Write down numerical. A bullet of mass 20 gram. A bullet of mass 20 gram strikes a target with a velocity of 150 meter per second. Strikes a target with a velocity of 150 meter per second and brought to rest after piercing 10 centimeter into it. After piercing 10 centimeter into it. Full stop. Calculate the average force. Calculate the average force of resistance offered by the target. So, what is given to you? U is equal to 150 meter per second, and mass of the bullet is equal to m is equal to 20 gram. 20 means 0.02 kilogram, and brought to rest means final velocity is equal to 0, and displacement covered by the body is equal to 10 centimeter. Sorry, by the bullet is equal to 10 centimeter. Is equal to 0.1 meter, is equal to 0.1 meter.
Now we know work is equal to 1 by 2 mv square minus 1 by 2 mu square, और it is equal to 1 by 2 into m की जगह आ जाएगा बेटे आपके पास कितना 0.02 into 0 square minus 1 by 2 into 0.02 into 150 square, or it is equal to, write down, or it is equal to minus 22,500 joule, or it is equal to work done is equal to minus 22,500 joule. Okay, so therefore, or you can say this work is equal to what, F into S. डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बेटे यहाँ पे बोलो शाबाश, जस्ट 1 मिनट. डिस्प्लेसमेंट आ गया दैट इज इक्वल टू F into 0.1. yes, 0.1 is equal to this much. So therefore force is equal to कितना आएगा बोलो शाबाश, force applied by the body on the bullet to stop it is equal to divided by this, that is equal to change in kinetic energy divided by बोलो बेटा शाबाश 0.1. So therefore ये जो फोर्स आ जाएगा आपके पास ये आएगी minus 22,500 न्यूटन. Yes, what does this negative sign indicates? Yes बेटा जी, जब भी नेगेटिव साइन आपका आंसर में आएगा तो आपने इस नेगेटिव साइन को बताना भी इसकी इंडिकेशन क्या. ओके, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट this force is applied by the body on the bullet opposite to the direction of bullet. Write down the negative sign here indicates that, Matthew. Yes sir. Force is equal to minus 22,500 Newton. The negative sign here indicates that force is applied by the body or target, opposite to the direction of bullet. Opposite to the direction of bullet. Yesterday, last time we have discussed conservative and non-conservative forces. Okay, so देख लो एक बार दोबारा. Let us suppose here is point A, here is point B, and I took some body of mass m from A to B via path number 1. This is path number 1. Another day I took the same body from A to B by path number 2. Third day I took the body by path number 3. This is path number 3. लेकिन डेली जो मैंने काम करना पड़ा मेरे को, वो काम मेरे को करना पड़ा कितना 50 जूल. ओके, मीन्स इसका मतलब हो गया भी अगर मैं बॉडी को A से B तक लेके जा रहा हूं तो जो काम करना पड़ रहा है मेरे को वो रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. रास्ता चाहे जितना छोटा है, रास्ता चाहे जितना बड़ा है, लेकिन काम जो करना पड़ रहा है वो ये डिपेंड कर रहा है भाई पॉइंट A कहां पे है और पॉइंट B कहां पे है ना. So therefore such forces are called conservative, against which the work done always depends upon the position, initial and final position of the body and not on the path followed. Such forces are called conservative forces.
फॉर एग्जांपल दिया था हमने ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, all these forces are what? Electric force, all these forces are what? Conservative forces, okay? And frictional force जो होती है बेटे, that always depends upon the path. Frictional force जो है that always depends upon the path. मीन्स आपकी गाड़ी का टायर कितना घिसा है ये डिपेंड करता है टायर कितने किलोमीटर चला है। एम आई राइट और नॉट? तो जितना ज्यादा डिस्टेंस पाथ टायर ने कवर किया होगा उतना ही टायर का क्या होगा? घर्षण होगा, ठीक है, फ्रिक्शन होगा। सो देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सी फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। व्हाट आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बेटा जी? अगर हम फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करें तो वो जो काम होगा वो रास्ते के ऊपर डिपेंड करेगा, रास्ता कितना बड़ा है कितना छोटा है, ना कि कहां से लेके कहां तक चले। ओके, नॉट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ द बॉडी। ओके, सो नाउ यस बेटे, प्रूव दैट, राइट डाउन, prove that gravitational force is conservative force. Prove that gravitational force is conservative force. Prove that gravitational force is conservative force. So देखो बेटा इधर yes. For that मैं 4 रास्ते चूज कर रहा हूं। ओके, let a body is lying. This is the surface. This is condition number 1. Let the body of mass m is lying here. तो weight of the body कितना होगा बेटे? बोलो शाबाश, mg। okay, and I want to took the body up to height h. height जो है इसकी कितनी है? बोलो शाबाश, h। so in order to took the body from point A to point B, मेरे को कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी बेटे ऊपर वाले साइड को? जितना इसका वेट है उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी। ओके, सो देयरफॉर अ फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी आई हैव टू अप्लाई इन ऑर्डर टू लिफ्ट द बॉडी। और मेरे को डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा यहां तक जाने के लिए? बोलो, फर्स्ट केस में जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैं फोर्स भी ऊपर को लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर को लगा रहा हूं, सो कितना आ गया? दैट इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू एफ एस। एफ कितना है? mg। और एस कितना है? एच। तो मेरे को वर्क कितना करना पड़ा बेटा? बोलो शाबाश, मेरे को mgh वर्क करना पड़ा ना। ओके, इन सेकंड केस yes, sir. सेकंड केस में क्या है? बोलो शाबाश, सेकंड केस में मैं बॉडी को ऐसे लेके जाता हूं। ओके, 3-4 जो स्टेप्स हैं, ठीक है। इस स्टेप की हाइट कितनी है? h1। इस स्टेप की हाइट कितनी है? h2। और इसकी हाइट कितनी है? h3। ओके, तो यहां से जब मैं बॉडी को यहां तक लेके जाऊंगा तो वर्क कितना होगा? mgh1। और फिर यहां से जब यहां तक लेके जाऊंगा तो mgh2। और फिर जब यहां से यहां तक लेके जाऊंगा तो mgh3। टोटल वर्क कितना होगा? प्लस mgh1 plus mgh3। अब mg तो तीनों में कॉमन है, mg तो कॉमन है, इंटू h1 प्लस h2 प्लस h3। तो h1 प्लस h2 प्लस h3 कितना हो गया? h। तो देयरफॉर इस केस में भी वर्क डन कितना हुआ? मैं वर्क कौन सी फोर्स के अगेंस्ट कर रहा हूं? ग्रेविटेशन। हाँ, क्योंकि ग्रेविटी ने इसका वेट नीचे को है तो मैं वेट के अगेंस्ट इसको ऊपर लेके जा रहा हूं। तो हमने पहले 2 रास्तों में देख लिया, ये रास्ता सबसे छोटा सीधा रास्ता, इसमें वर्क कितना हुआ? mgh। और ये रास्ता जो था, ठीक है, 3-4 स्टेप्स वाला था। ओके,
मतलब हाइट तो सेम थी लेकिन ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है इंक्रीज हो गई। नंबर 3 बेटे मान लो सपोज करो अब स्टेप नंबर ऑफ स्टेप्स जो है कितनी है 100 200 ओके। तो 200 स्टेप्स तो मैं नहीं बना सकता लेकिन मैं ऐसे बनाऊंगा यहाँ पे ओके। लाइक दिस इज दी पाथ, जैसे मंदिर को नहीं चढ़ते नैन उसको वैष्णो देवी के मंदिर को ओके। यस सर। तो अब मान लो सपोज करो यहाँ पे अगर n स्टेप्स है n तो वैसे आ जाएगा h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस डैश डैश प्लस hn है ना। यस सर। टोटल h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस hn कितना हो जाएगा h। और वर्क कितना करना पड़ेगा मेरे को mg h1 प्लस mg h2 प्लस डैश डैश प्लस mg hn। तो टोटल वर्क इस केस में कितना हो गया mgh। रास्ते हो गए, 3 रास्ते अलग अलग ही हैं, बड़े छोटे हैं रास्ते ठीक है, लेकिन जो है इनिशियल जो पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है वो एक ही है। मतलब मैंने ग्राउंड फ्लोर से किसी बॉडी को उठाना और 7th फ्लोर तक लेके जाना। अब एक दिन मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट लेके जाता हूँ सीधा, एक दिन फर्स्ट फ्लोर के ऊपर चढ़ के सारे कमरे में घूम के जाता हूँ तो भी उतने काम है, अगले दिन फर्स्ट फ्लोर भी घूमता हूँ सेकंड फ्लोर भी सारे घूमता हूँ फिर भी उतना काम हो रहा है एंड सो ऑन। ओके बेटा जी। यस सर। यस सर। एक और देख लो इसका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है चौथा वाला रास्ता वो देखो। सपोज करो नाउ पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में क्या है, सॉरी बोर्ड में गीला हो जाए तो थोड़ा इसके ऊपर मार्क नहीं चलता प्रॉपर। नाउ सपोज दैट बेटे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में क्या है इंक्लाइनेशन है ओके। लेट द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज थीटा, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी ओके। और लेट इसकी जो लेंथ है दैट लेंथ इज इक्वल टू एल और इसकी हाइट तो हमें पता ही है कितनी है, बोलो शाबाश h। जब बॉडी देखो बेटे यहाँ पे होगी यहाँ पे तो इस बॉडी का जो वेट होगा कहाँ होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब बीइंग वेक्टर क्वांटिटी इस वेट को मैं दो कंपोनेंट में करूंगा क्या ओके रिजॉल्व करूंगा। एक कंपोनेंट आएगा पैरेलल टू द प्लेन और एक आएगा जो काउंटर करेगा रिएक्शन को एंड दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा, दिस इज इक्वल टू mg cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट mg sin theta। mg sin थीटा। बड़े ध्यान से देखना, मैं इस बॉडी को ना तो ऊपर को उठाना ना नीचे को दबाना, मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा ना। यस सर। तो मेरे को कितनी फोर्स लगाने पड़ेगी mg sin theta। हाँ mg sin थीटा के बराबर फोर्स लगाने पड़ेगी। सो देयरफॉर वर्क डन कितना होगा बेटा बोलो शाबाश दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी होगी mg sin थीटा और डिस्टेंस कितना कवर करूंगा l। लेकिन साइन थीटा क्या होता है बेटा जी बोलो शाबाश साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है h। और हाइपोटेन्यूज कितना है l। तो देयरफॉर h अपॉन l इनटू l, l से l कैंसिल हो गया, वर्क डन आ गया कितना हो गया mgh। जल्दी कर लो हो गया। यस सर। यस सर। यस सर। ओके सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी फोर्स है बेटा It depend upon path length। नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ बेटे राइट डाउन पावर पावर power of a body is defined as
its capacity, so is defined as the rate of, is defined as the time rate of doing work, is defined as the its time rate of doing work. Okay, now therefore power is equal to work upon time. Power is equal to work upon time. Okay, Yes, sir. एक बेटे मैं लिख सकता हूं एवरेज पावर इज इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ डूइंग वर्क. ओके, लिसन, बड़े ध्यान से देखना. एक तो लिख रहा हूं मैं पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, एक लिख रहा हूं मैं एवरेज पावर इज इक्वल टू dw अपॉन डेल्टा टी. ओके, डेल्टा टी इसको मैं दोबारा और लिख देता हूं. लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 इनटू एवरेज पावर. This is your average power. This is your average power and this is your instantaneous power. एक मिनट में समझाता हूं आपको. एक होती है मशीन, बेटा मशीन है ना. मशीन जो होगी वो 1 मिनट में मॉर्निंग में भी उतना ही काम करेगी, इवनिंग में भी उतना ही काम करेगी, जब भी काम करेगी 1 मिनट में उतना ही करेगी ना. तो मशीन की जो क्या होगी बोलो साहब, पावर जो होगी वो कांस्टेंट होगी ना. लेकिन जैसे मैं खुद हूं, अब मैं मॉर्निंग में एक लेक्चर दे रहा हूं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा. जैसे मैं 5वें लेक्चर पे आऊंगा तो मेरी कैपेसिटी जो होगी, सॉरी मेरा रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना. लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो टाइम बहुत छोटा है, लिमिट टाइम को हमने लिमिट किया, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, उस वेरी वेरी स्मॉल टाइम में मैं काम कितना करूंगा, वेरी वेरी स्मॉल. ओके, सो देयरफॉर इसको बोल देते हैं हम क्या बोलो शाबाश, दैट पावर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 ऑफ एवरेज पावर. दिस इज योर एवरेज पावर, डेल्टा W अपॉन डेल्टा टी, एंड दिस इज योर इंस्टेंटेनियस पावर. दिस इज व्हाट, इंस्टेंटेनियस पावर. कौन सी है बेटा जी बोलो शाबाश, इंस्टेंटेनियस पावर. Instantaneous power. Yes, we know delta W. You can also say better dW or ds over dt है ना. So delta W is equal to force dot displacement. Okay, putting the value of what here. So therefore power, instantaneous power can be written as what? बोलो शाबाश जी बेटे, F dot ds vector upon dt. dt लिखना, dt लिख लो, delta t लिखना, delta लिख लो. Okay, you can write delta s. I am writing delta s, delta t. Okay, so as the force and displacement in the same direction, so therefore it is equal to what, F into delta s cos of 0 degree. Cos 0 1 हो जाएगा divided by delta t. Okay, so therefore instantaneous power is equal to force into velocity. Okay, this is average force. So therefore power instantaneous is equal to, अब force भी कौन सी quantity है, vector quantity है, velocity भी vector quantity है. So I can write it in scalar form. So it is equal to F average dot V average. F average dot V average. Okay. Yes sir. So therefore बेटे क्वेश्चन आता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है. जो बच्चे मेरे पास 9th में पढ़े हुए हैं उनको 9th में मैंने करवाया हुआ है. लोकेश किया ना मैंने, ऐसा नहीं किया मैंने, इंस्टेंटेनियस नहीं किया, लेकिन इतना ड्राइव किया. विच फिजिकल क्वांटिटी इज फोर्स टाइम्स वेलोसिटी है ना. Yes sir. विच फिजिकल क्वांटिटी इज फोर्स टाइम्स. बच्चे ना टाइम्स को मतलब मल्टीप्लाई को बोलता है, लेकिन बच्चे उसको टाइम लिख देते हैं, फोर्स इनटू टाइम इनटू वेलोसिटी. तो क्वेश्चन बन जाता है ओके, विच फिजिकल क्वांटिटी इज फोर्स टाइम्स वेलोसिटी. टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई. ओके, राइट डाउन बेटे. नेक्स्ट यूनिट ऑफ पावर.
सो पावर आ गया हमारे पास, क्या आ गया बेटे बोलो शाबाश, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का यूनिट क्या होता है, पावर इसका आ गया वॉट। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जॉल। वर्क का क्या यूनिट होता है बेटे, Joule per second. 1 जॉल अपॉन टाइम का 1 second. So therefore 1 watt is equal to 1 joule into per second. Per second. Okay? Okay. Yes, sir. So therefore the power of a body is said to be 1 watt if it does 1 joule of work in 1 second. If it does 1 joule of work in 1 second. Okay? बेटे इसका बड़ा यूनिट क्या होता है बोलो सास, किलोवाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 3 वाट। 1 मेगावाट 10 रेज़ टू पावर 6 वाट। 1 गीगावाट 10 raised to power 9 watt. 1 horsepower 1 HP is equal to, yes look at 746 746 watt. Yes beta ji, write down numerical. Hurry up. A man of mass 60 kilogram, a man of mass 60 kilogram runs up a height of 30 steps in 40 seconds. If each step is 20 centimeter high, if each step is 20 centimeter high, calculate the power of man. Yes बेटे जल्दी करो इसको। तो स्टेप्स कितने हैं? 30 है, 30 स्टेप्स बेटा। यस सो राइट डाउन। उसको फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, जितना उसका अपना वेट है ना। सो फोर्स इज इक्वल टू mg, m इज इक्वल टू 60 इंटू 9.8 न्यूटन। 60 इंटू 9.8 न्यूटन। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना पड़ेगा इसको, हाइट 30 इंटू 20 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर और 6 मीटर। और टाइम कितना, कितने टाइम में करता है उसको, 40 सेकंड में। जी बेटा जी 40 सेकंड। सो देयरफॉर पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये आ जाएगा बेटे आपके पास 88.2 वॉट। हरविंदर मैम प्लीज अटेंडेंस फॉर्म कर दें शेयर। सर आप शेयर करें। मैम कर दें शेयर प्लीज। I'm not able to share. बेटे आई एम शेयरिंग द गूगल फॉर्म। सर यस बेटा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर आपने अटेंडेंस फॉर्म ग्रुप में शेयर कर दिया था, क्लास ग्रुप में। कब सर जब आपने मीटिंग का लिंक डाला था उसमें नहीं, वो तो ही यहाँ पे थोड़ी आया होगा बेटा। सर वहां से अटेंडेंस लगा लेंगे। चलो जल्दी लगा लो बेटे, फिर नहीं मैं बेकार ही रहूंगा। 1 मिनट जस्ट वेट।
Yes, Vijay. I have shared it. उसका एंटर नहीं करना है. Yes, Vijay. फिर संजना ने कर दिया. जी जी मैम. उसका सेंड एंटर नहीं करना है. ज्वाइन करता ना. यहाँ पे क्लिक कर. तो होस्ट मैम है. हाँ ये छोटे हो गया. Yes, sir. Yes, sir. आई थिंक वो टाइम भी होने वाला है. राइट ऑन पोटेंशियल एनर्जी. Right on potential energy, I think 1 minute is left. Potential energy, it is the energy possessed by the body. It is the energy possessed by the body by virtue of its position or configuration. By virtue of its position or configuration. configuration में बेटे ब्रैकेट में लिखना शेप और साइज. शेप और साइज. It is of many types. For example, gravitational potential energy. Number 2, electrostatic potential energy. Number 3, elastic potential energy. यस बेटे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो. इसको तो नहीं हम डिस्कस करेंगे. ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलास्टिक को नहीं करेंगे हम डिस्कस. इसको इलास्टिसिटी में करेंगे, बल्क प्रॉपर्टी में. बट